Hello, my dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope that you will be fine. I am D.R. Meghwal, PGT Economics from Kendra Vidyalaya number 2, Udaipur. So let's start the today's topic, National Development. In our previous class, we have studied about the national development and different development goals. We have studied in our previous class that it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Now look at the picture on the right. You should first observe the picture on the right side and you are to think about the questions given here. First question is that what should be the development goals for such an area of multi-storied buildings, and they avail all type of facilities, but the poor people, they are living in slums and they even not able to fulfill their basic needs. हम देख रहे हैं कि धनवान लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और गरीब लोग स्लम्स में रह रहे हैं और उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है. बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स, एकोमोडेशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, health, safe drinking water, accommodation for the poor through government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, and more job opportunities should be given to the poor people. Next question, what can be some of the development goals for your village, town or locality? In your village, town or locality, that is employment generation, poverty alleviation, proper sanitation, cleanliness, safe drinking water, and all season roads, electricity supply. So these may be the development goals. How to compare different countries? In this world, many countries are there, and how we can compare those countries? कुछ देशों को डेवलप्ड की श्रेणी में रखा जाता है और कुछ देशों को अंडर डेवलप्ड की श्रेणी में रखा जाता है. मतलब कुछ धनवान देश है, कुछ गरीब देश है, तो हम इनको किस टाइप से कंपेयर करते हैं. How some countries are generally called developed and others underdeveloped. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, कुछ डेवलपमेंट गोल इनकम रिलेटेड होते हैं और कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अदर देन इनकम रिलेटेड होते हैं. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इनकम कितनी है, और इनकम के अलावा हम दूसरे क्राइटेरिया भी देखते हैं. इनकम के अलावा हम दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वेलिटी, हेल्दी एनवायरनमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस. तो ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो है इनकम. तो अगर हमें एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें इनकम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि इनकम किस देश की ज़्यादा है और किस देश की कम है. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस. अभी हमने जस्ट बताया आपको कि इनकम जो है वो मेजर रोल उसमें अदा करता है, लेकिन इनकम के साथ साथ हमें पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है कि कुछ देशों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कुछ देशों की पॉपुलेशन कम होती है. Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. So we will take the criteria that is the average income. And average, how can we calculate average income? That is, average income is equal to total income divided by total population. The average income is also called per capita income. और जो औसत आय जो होती है उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, और उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको हम जनसंख्या से डिवाइड करते हैं. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू एन एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जतिन्स फैमिली इनकम इज़ 40,000 रुपीज़ एंड 4 मेंबर्स. जतिन की फैमिली में 4 मेंबर्स है और 40,000 उसकी इनकम है. तो हमें एवरेज इनकम मतलब कि एक व्यक्ति के, एक मेंबर के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो टोटल इनकम is 40,000 rupees and total population here in this family that is 4.
सो 40,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो एक व्यक्ति के हिस्से में 10,000 रुपीज़ आएंगे। नेक्स्ट, सरन्याज फैमिली income is 50,000 rupees and 10 members. So what will be the average income? Total income divided by total population. So income is 50,000 and it is divided by 10. So per person, the income per person, that is, we will take the another example of the country. Suppose in a particular country there is 200 crore rupees is the national income and the population is 2 crore. We will get the value 100 rupees. So the average income of that country will be 100 rupees in our example, and average income is also called per capita income. World Bank report 2019, वर्ल्ड बैंक जो अपनी रिपोर्ट देता है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से एक देश का कंपैरिजन दूसरे देश से करता है। मैंने इंटरनेट से ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So as of 1st July 2019, low income countries are defined as those with a GNI, that means gross national income per capita of $1025 और less। मतलब कि जो देश, ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम $1025 से कम है वो लो इनकम कंट्रीज है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके अनुसार अगर एक व्यक्ति के हिस्से में $1025 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लो इनकम कंट्री है। लो इनकम ग्रुप, उस कंट्री को हम लो इनकम ग्रुप में रखेंगे। लाइक दैट, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज are those with a GNI per capita between $1,026 and $3,995। तो $1,026 से लगा करके $3,995 तक की इनकम वाले, पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज जो होते हैं वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। लाइक दैट, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज आर दोज GNI per capita between $3,996 and $12,375। तो ऐसे देश जिन देशों की पर कैपिटा नेशनल इनकम 3,996 से लगा करके 12,375 तक है वो अपर मिडल इनकम कंट्रीज है। तो वो तीसरे ग्रुप में आएंगे जिसको हम अपर मिडल इनकम ग्रुप कहेंगे। हाई इनकम कंट्रीज आर दो GNI पर कैपिटा $12,376 एंड मोर। ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,376 से ज़्यादा है या फिर 12,376 है, ऐसे देश हाई इनकम ग्रुप में आते हैं। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, हमारा इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। और इंडिया, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन classifying different countries? This is the question that in classifying different countries, what is the main criteria taken by World Bank? तो World Bank सबसे बड़ा जो मेन क्राइटेरिया जो लेता है वो पर कैपिटा इनकम होता है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो कंट्रीज़ को क्लासीफाई करता है और क्लासिफिकेशन के 4 भाग है जिसका अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया है। लो इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। तो इस टाइप से 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ़ एनी? अब उसकी कुछ कमियां भी है तो बताना है कि इसकी कमी ये है कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया लेकर हम किसी देश को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि इनकम के अलावा हमने देखा कि अदर देन इनकम रिलेटेड क्राइटेरिया जो होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। In this we will discuss that average income may be same for 2 countries, but major important things is that the distribution of income should be proper. If income distribution is not proper, then it will be more problematic. इसमें एग्जांपल में हम देख रहे हैं कंट्री ए की जो एवरेज इनकम है वो 20,000 है और कंट्री बी की इनकम भी, एवरेज इनकम भी 20,000 है, लेकिन कंट्री ए में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और कंट्री बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इनकम कम भी हो, एवरेज इनकम कम भी हो, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा
तो हमें और ज़्यादा वेलफेयर कंट्री का हो सकता है और सभी लोगों का वेलफेयर उसमें हो सकता है। और इनकम ज़्यादा होते हुए भी और एवरेज इनकम भी ज़्यादा होते हुए भी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं, पहले एक कंट्री है उसके अंदर 5 लोग हैं, दूसरी कंट्री है उसमें 5 लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिए गए हैं। अब पांचों लोगों की इनकम जो दे रखी है इसके अंदर 20,000, 21,000, 22,000, 19,000 और 18,000। तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। तो इसमें इनकम सभी लोगों की इनकम 20,000 के आसपास है, तो सभी सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होगा, अच्छा होगा। अब हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं तो 4 लोगों की इनकम सिर्फ 1,000 रुपया है और एक व्यक्ति की इनकम 96,000 है। तो एवरेज तो उनका भी 20,000 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहाँ पे एक गरीब वर्ग है वो अपने बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है और एक रिच वर्ग है जिसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इस टाइप से इनके अंदर रिच और पुअर के बीच में गैप ज़्यादा है। तो इस टाइप से ये डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम जो है वो उसको जानना भी ज़रूरी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना भी इनकम का ज़रूरी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, ये कंट्री एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर रिच और पुअर, कोई रिच नहीं है कोई पुअर नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल है कंट्री विद रिच एंड पुअर। इसमें एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ लोग रिच है और कुछ लोग पुअर है। पहले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दिस कंट्री, और दूसरे कंट्री की हम बात करते हैं तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दिस कंट्री। दूसरे कंट्री में अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और पहले कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सो सम क्वेश्चंस आर देयर, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। एवरेज प्ले आवर्स इन ए डे, आप एवरेज एक दिन में कितने घंटे खेलते हो, तो इसका भी आपके लिए हम जनरली हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। कभी मान लो 3 घंटे खेलते हो, कभी 1 घंटे खेलते हो और कभी 2 घंटे खेलते हो, तो इसका मतलब कि आप एवरेज 2 घंटे खेलते हो। 1, 2 और 3 का जब हम एवरेज निकालेंगे तो 2 घंटे आएगा। इस टाइप से हम कई एग्जाम्पल हम हमारी लाइफ के हो सकते हैं जिसमें हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। एवरेज इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टोटल इनकम की तुलना में। टोटल इनकम में हम 2 देशों को कंपेयर करते हैं, हो सकता है एक कंट्री की इनकम ज़्यादा हो दूसरे कंट्री की तुलना में, लेकिन जिस देश की इनकम ज़्यादा है उस देश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर हमें उसको पॉपुलेशन से भी कंपेयर करना ज़रूरी है। तो जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो उसमें पॉपुलेशन भी कंसिडर होती है और टोटल इनकम भी कंसिडर होती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में अभी देखा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है कि 1000 बच्चों का जन्म होता है किसी लोकेलिटी में, तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही हो जाती है। तो ऐसे बच्चों की संख्या जो होगी वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होगी, मतलब कि शिशु मृत्यु दर होगी। तो शिशु मृत्यु दर एक हेल्थ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम कंट्रीज़ को या स्टेट्स को हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट लेना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबोव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग उनमें से लिटरेट है, उसका जब हम प्रोपोर्शन निकालते हैं तो वो लिटरेसी रेट होती है, साक्षरता दर होती है। नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते वक्त कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में नाम उनका रिकॉर्ड में होता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर पे रह लेते हैं। तो उसकी मतलब कि एक क्लास में मान लो 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन के टोटल 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे एवरेज स्कूल को अटेंड करते हैं वो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है।
मान लो कि 50 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 50 अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो होगा वो 50 होगा। ये 100 के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अगर मान लो 100 बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, तो इसका एवरेज हम निकालते हैं। और जनरली ये नेट अटेंडेंस रेशियो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए निकाला जाता है, जो कि एज ग्रुप 6 से 10 साल के बच्चों का होता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स? We are taking different criteria. First criteria is that per capita income, and I have taken the per capita income of 2018 and 19. In the book, the old data is given, and I have taken new data from internet, so you can take the screenshot for future. So per capita income is given for 4 states, that is Goa, Delhi, Rajasthan and Bihar. In Goa, per capita income is 5,02,425, in Delhi 4,02,172, and in Rajasthan 1,21,582, and in Bihar 47,541. So per capita is highest in Goa. In Indian states, highest per capita income is in Goa according to 2018 एंड 19। गोवा की इनकम हमारे देश में सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार, और दिल्ली इसके अंदर सेकंड नंबर पे है। और इसके अलावा और भी हमने कुछ 2 स्टेट और लिए हैं, ऐसा नहीं कि राजस्थान तीसरे नंबर पे है, और भी हमने स्टेट लिए जिनकी लोअर इनकम, जो कि लोअर इनकम ग्रुप के हैं। अब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दैट इज इन गोवा 8, इन दिल्ली 18, इन राजस्थान 41 एंड इन बिहार 38। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट गोवा में बिल्कुल कम है, सिर्फ 8 है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ कि 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से कितने बच्चों की डेथ 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो जाती है। तो गोवा में ऐसे 8 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल पूरी करने से पहले ही डेथ हो जाती है 1000 बच्चों में से। और दिल्ली में 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उनमें से 18 बच्चों की डेथ 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो जाती है। तो इस टाइप से राजस्थान में ये रेशियो सबसे ज़्यादा है और गोवा में ये सबसे कम है। नाउ वी विल कंपेयर द स्टेट्स बाय लिटरेसी रेट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, एंड इन गोवा दैट इज 87.4%, in Delhi that is 86.34%, in Rajasthan 67.06%, and in Bihar that is 63.82%. And you should know that highest literacy rate in our states, that is Kerala. In Kerala there is 94% literacy rate, and in Lakshadweep that is at the second number, that is 92.28%, and in Mizoram that is at third rank, and the literacy rate in Mizoram is 91.58%. So we can see that it is not compulsory that the, तो हम अगर सिर्फ उसको इनकम के क्राइटेरिया के हिसाब से लेंगे तो गोवा सबसे डेवलप्ड माना जाएगा और फिर बाद में दिल्ली। लेकिन अगर हम लिटरेसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी और नेट अटेंडेंस रेशियो और बाकी दूसरे कंपोनेंट के आधार पर भी कंपेयर करेंगे तब हमें वास्तविकता का पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट नेट अटेंडेंस रेशियो इन गोवा दैट इज 78, इन दिल्ली दैट इज 70, in Rajasthan that is 60, and in Bihar that is only 40. Let's see how much you have learnt. First, question number first, define per capita income. Per capita income is the total income divided by population. Next question, define infant mortality rate. Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. किसी वर्ष 1000 बच्चों के जन्म में से कितने बच्चों की डेथ 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो जाती है, वो हमारी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या फिर शिशु मृत्यु दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ literate population in the 7 and above age group. Next question, question number 4,
Which state is having highest literacy rate as per census of 2011? Kerala is having 94% literacy rate in our country according or as per the census of 2011. Now question number 5. Which of the following states is having highest infant mortality rate in 2016? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान. राजस्थान is having 41 infant mortality rate. Next question number 6. Which of the following states is having lowest literacy rate as per the census 2011? So the correct answer is Bihar, and in Bihar there is only 63.82% literacy rate. Next question number 7. Which of the following states is having lowest net attendance ratio in primary schools? The correct answer is Bihar, and the net attendance ratio is only 40. Question number 8. Which state is having the highest per capita income in 2018-19? So Goa is having per capita income that is 5,02,425 rupees, and that is the highest in Indian states. Next question number 9. Assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, rupees 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? So the calculation is given here. Average income is equal to total income divided by total population. So average income is given, that is 5,000, and that should be equal to the total income divided by population, that means 4,000 plus 7,000 plus 3,000 plus x. We assumed that the 4th family's income is x. हमने मान लिया कि चौथी फैमिली की इनकम x होगी, तो इस टाइप से चारों फैमिली का टोटल हमने ले लिया, फिर इस टोटल को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब 4 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5,000 से इंटू हो जाएगा. 5,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 14,000 प्लस एक्स. इन दिस वे 20,000 is equal to 14,000 plus x. So the value of x will be 20,000 minus 14,000 is equal to 6,000. So the 6,000 option D is the correct answer. Thank you very much my dear student for watching this video, and I hope that you have understood all the things clearly.